Good morning, students. Today we will discuss about RS nomenclature. In previous lecture, we learned about RS nomenclature, the rules of RS nomenclature, which are given by Cohen, Ingold, and Prelog, and the 4 rules we have studied in that lecture. So in today's lecture we are going to study some questions and some problems uh, related to the RS nomenclature. Clockwise rotation and anti-clockwise rotation. What is clockwise rotation? In previous lecture, as we studied, that this is carbon, and if the 1, 2, 3, 4 are the substituents, then we according to atomic number we give them the priority. Higher atomic number of atom has highest priority and lowest atomic number has lowest priority. So in this question, the carbon, then 4 substituents are here, and the A, B, C and D. So 1, 2, 3, 4, these are according to the priority number, and 1 to 2, 2 to 3. When we rotate this number, so the 4 is here is negligible. So why? Because it is not on the plane of the paper, it is away from the paper, away from the viewer, and the all the three substituents are considered here. So this is clockwise rotation, means 1 to 2, 2 to 3. This is clockwise rotation, and this is anti-clockwise rotation, and we can say counterclockwise rotation. Counterclockwise rotation, we are doing it as 1, 2, 3, and this is like that. Okay, so according to Cohen, Prelog, and Ingold, the RS nomenclature is for asymmetric carbon atoms, and in asymmetric carbon atom all the substituent are different. Okay, and this is called asymmetric carbon atom. This is noted at this. Okay, now we are going to do some questions and some examples. First of all, examples are 1 bromo 1 chloroethane, 1 bromo 1 chloroethane. So 1 bromo 1 chloroethane is CH3CHClBr. Okay, so we can write this is asymmetric carbon atom, and these are 4 substituent of this. So carbon, chlorine, hydrogen, methane and bromine. All the 4 substituents are different, and we draw this formula according to IUPAC nomenclature. Now we are going to order these according to their priorities, and their order of priorities are according to atomic number. Higher atomic number has high priority. So bromine 1, then chlorine, then CH3. Okay, and H is not considered as it is not in the plane. Okay, so we draw this formula in 2 types. In this structure we draw it like C, okay, then Br,
H away from viewer. This is viewer. Okay, this is eye of viewer, and this is the viewer, and this is away from viewer. H is away from viewer, and 2 number priority we will give to chlorine and CH3. So number 1, number 2, and number 3. Okay, then we can write this formula as this, like that, CBr. okay, and CH3 हम मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे इस तरफ लिख रहे हैं. okay, and Cl and H. okay, this is the viewer, means this is the structure which show that 1 to 2, 2 to 3. This is 1 to 2, 2 to 3. This is anti-clockwise. And 1 to 2, 2 to 3. This is clockwise. Means this is S, this is R. From one formula, we can write R and S, both the structures. Okay, and these structures are according to their priorities. So we can only do nomenclature of according to Cohen and Prelog, R and S. Okay, lowest priority group directed away from us, that is H, and lowest priority group directed away from us, that is H. And now trace the path from the atom. The group is decreasing order, that is in decreasing order, that is S and R. I already told you about this, S and R. Okay, now some other examples. When we are talking about butane 2-ol, this is the formula of butane 2-ol. Butane means 4 carbon, ol means OH group. So 2 means in second carbon. This is IUPAC nomenclature, and according to IUPAC nomenclature, we write the formula, and after that we write the priority of substituent. So according to priority of substituent, first of all, we know that in this formula this carbon is asymmetric. Okay, so we can write it in this way. So all the substituent we can write here. Okay, and we should write in that OH, CH2, CH3, CH3 and H. Okay, so these are the substituent. Okay, now we can write it like clockwise and counterclockwise both, as we see here that carbon, hydrogen is away from viewer, we can write here. Okay, and this is tetragonal structure, so tetrahedral structure, and so we are going to see that carbon, CH3 methyl group, hydroxy group, and the ethyl group. So first of all, give priority to this. So H is away from viewer, and this is, we can write that this is the viewer's eye. When the viewer see from here, H is away from the viewer, and CH3 and OH are in the plane, and CH3 CH2 is towards the viewer. Okay, so sorry, I'm very sorry.
Okay. Clockwise. So this is clockwise direction, and give the priority 1 number, 2 number, and 3 number. So we can write R and S both type of formula or nomenclature according to RS nomenclature. Okay. Now आपके पास क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है assign R and S designation to the following. Okay. So the question is that आपके पास क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है आपके पास एक कार्बन दिया हुआ है. कार्बन के ऊपर NH2 है, CH3 है, H है, CH2Cl है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कार्बन के सीधे डायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं वो ग्रुप देखने हैं. तो N है, इसको 1 नंबर दे दिया हमने. नाइट्रोजन ज़्यादा नंबर का है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसका. और सबसे पहले हाइड्रोजन को तो आप 4 नंबर दे ही दीजिए, बिकॉज इसको 4 नंबर, क्योंकि लोएस्ट एटॉमिक नंबर है इसका. और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ये है. तो अब देखिए इस कार्बन से सीधा कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से सीधा कार्बन जुड़ा हुआ है. तो हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे. तो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है. सो वी गिव 2 नंबर टू इस सब्स्टिट्यूएंट को हम 2 नंबर देंगे, और इसमें मिथाइल को 3 नंबर. तो जब हम इसको घुमाएंगे तो हम कैसे घुमाएंगे बताइए. 1 to 2, 2 to 3. So this is anti-clockwise or counter-clockwise direction. So it is S. Okay. So it is S. Now according to now second question. Second question हमारे पास क्या है? देखिए ध्यान से. Second question है ये वाला. ठीक है. इसके अंदर क्या होगा देखिए. कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, ये चारों हैं. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 नंबर दे देंगे. सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वाले को, ब्रोमीन को 1 नंबर दे देंगे. 1 नंबर देने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें और इसमें डिसाइड करेंगे. क्योंकि हमें पता है कि रूल नंबर 4 जो है वो उसमें क्या था, डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण क्या आएगा. डबल बॉन्ड के कारण हमें पता है कि यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं. इट मीन्स इसको 2 देंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 1 से 2. ओके. 1 to 2. ओके. एंड 2 to 3. तो 1 2 3. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज R. ओके. Now second question is third question is carbon COOH group, CH3 group, Br group. ओके. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले Br जोड़ेंगे. Br को 1, इसको 4 नंबर दे दिया आपने हाइड्रोजन को. और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है. तो आपने क्या किए करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर दे दिया, यहाँ 1 दे दिया. अब ये कार्बन से कार्बन इधर है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको 2 देंगे और इसको 3 देंगे. सो अब कहाँ जाएंगे, 1 to 2, 2 to 3. व्हाट इज इट, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट्स नॉमेनक्लेचर इज S. ओके. नाउ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन है इस तरह से. थोड़ा आप देखिए ध्यान से. ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको. अब सीधा एकदम एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे. देखिए ये देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन है. ठीक है. बट ये CHO ग्रुप है. ओके. और यहाँ पे हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर जिसमें डबल बॉन्ड है वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता. हमें सबसे पहले एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है. उसके बाद में हाइड्रोजन इसके बाद जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, यानी 4th ग्रुप CHO ग्रुप है. तो हम इसको लिख लेते हैं. हमें कार्बन CHO, H, OH और CH2OH. ठीक है. अब इसके बाद सीधा हम प्रायोरिटी नंबर डालेंगे 1,
इसके बाद 2 3 एंड घुमा दिया। कैसे घुमाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, तो 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक है, ये कैसे हुआ 1 2 3? इसमें देखिए, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद H जुड़ा हुआ है, बट इसमें देखिए ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड के बाद में तो हमने जो फोर्थ रूल किया था इससे पहले वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियो में, उसके बाद हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो कार्बन है अगर डबल बॉन्ड है तो डबल ये O सिंगल बॉन्ड O 2 बार लिखेंगे हम, और उसके बाद कार्बन से फिर जोड़ देंगे। इसका मतलब कि इसको जो है सेकेंड नंबर देंगे और इसको थर्ड नंबर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आर आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में हमारे पास जो है ये आ रहा है NH2H CH2 CH3 और CH3। ओके, ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये यहाँ पर हाइड्रोजन है। आप सबसे पहले मेरे जो पहला स्टीरियोकेमिस्ट्री का वीडियो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो वीडियो है वो लगातार देखेंगे तो उसमें जो क्लियर किया हुआ पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, 4 टाइप ऑफ फॉर्मूलाज भी मैंने इसमें बताए हुए हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फोर फार्मूलाज। सो यहाँ पर जो है ये तो वेज डैश फार्मूला है, तो वेज डैश फार्मूला इसमें अप्लाई कर रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे NH2 है, फिर यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4 नंबर तो इसको देना है, इसको भूल जाइए। उसके बाद में आप देखिए ये प्लेन ऑफ द पेपर यहाँ पर है NH2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 प्लेन ऑफ द पेपर हैं और ये पीछे की ओर हैं। ठीक है, एक लेक्चर में इस पर भी दूंगी आपको कि इसमें एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक बॉल मॉडल जो होता है, तो स्टिक एंड बॉल मॉडल से मैं आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं NH2 CH3 CH2 CH3। ओके, तो अब क्या है बताएंगे। अब सबसे पहले 4, इसको 1 दे दिया, 2 किसको देंगे? 2 देंगे इसको। इस कार्बन के साथ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन अगला कार्बन क्या है? अगला कार्बन है इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसको क्या करेंगे? 2 नंबर देंगे और इसको 3 नंबर। तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार। इसी तरह से इसी क्रम में जो है वो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सो SH आ गया, CH2 CH3 आ गया, Cl आ गया और H आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे आप? सबसे पहले SH। ठीक है, लेकिन ये वेज डैश है, वेज डैश को आपने जो है वो इस तरह से शो करना है। H सबसे पीछे है, तो यहाँ पे H को 4 नंबर देना है, Cl को 1 देना है, इसको 2 देना है और इसको 3 देना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या घूम रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स S।